Hi everyone, this is C. Aishrikana from Commerce for You, and we are bringing this video specifically for students who are going to attempt their 11th and 12th exams in 2022. And we have covered actually almost all the points in which you face problem while attempting your exam. Whether it's related to your presentation, your time management, how to write the answers, up to what level you're going to explain that, and everything. So must watch this video if you really want to improve on how to attempt your exam. Thank you. So today we are going to understand exactly how to attempt your exam. So it can include numerous problems or हमें मेन प्रॉब्लम आती क्या है कि वी नेवर प्रैक्टिस एग्जाम बिफोर आर एग्जाम एंड द शॉर्ट कमिंग इज कि वी नेवर गो फॉर टेस्ट और अगर कोई टेस्ट या तो ले नहीं रहा और अगर ले रहा है तो वी रियली डोंट टेक दैट सीरियस और अगर कोई ले रहा है तो हो सकता है आपको चेक करके ना मिल रहा हो. So never expect from yourself कि you are directly gonna sit in your exam and you'll be proficient to write all the answers. You'll be able to present everything. अब इसमें whether it's theory exam or it's practical exam, both of these needs your written practice before your final exam. बहुत बच्चों को मिसइंटरप्रिटेशन होती है दैट बिकॉज वी हैव अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस और वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड आफ्टर सम टाइम वेन एवर योर एग्जाम्स आर लाइक नियर यू तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस you just start reading the solutions from illustration and all that and you believe that while reading you are able to understand कि यहाँ पर कैसे कैसे आपको solve करना है you'll be able to do it proficiently in your exams final exam लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है whenever we sit directly in our exam without written practice without test तो आपको ना उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस लूज होता है इट्स हॉरिबल because बच्चों you have not tested yourself कि whether you are able to write all the answers within time जैसे जय को आइडेंटिफाई हो चुका था टाइम पे. Number two, you are unable to know कि whether you'll be able to prepare your heads, subheads, introduction line, your conclusions, your examples. हमें स्पेशली थियरी पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यार these topics are too simple. Just like if we talk about source of finance, if we talk about international trade, internal trade, ये तो हो गया business studies के. If we talk about economics, we deal with supply chart, which is really basic. Producer equilibrium बहुत आसान है. लेकिन while writing the answers in your exam, you really stuck after one or two sentences because you have not done your written practice. तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा important है उस चीज़ को सबसे ज़्यादा serious लेना. So whatever test I'm taking these days, I generally take it like कि आप एग्जाम में उस चीज को आंसर को लिख रहे हो सो आई नेवर ओनली गो फॉर योर डायरेक्ट आंसर. I just check some of the points as I'm also checking CA foundation exams, so I know कि what level of presentation, what level of explanation is actually required in your exams. तो ध्यान से एक चीज को समझना बच्चों. Whenever it's practical, we need time management along with a perfect calculation और आपको हर एक का ट्रीटमेंट टिप्स पे होना चाहिए जस्ट लाइक इफ वी टॉक अबाउट द डिस्कशन वी डिड जस्ट बिफोर दिस हमने किया फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स. तो इफ एनी एडजस्टमेंट इज देयर आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए ओके यार आउटस्टैंडिंग वेजेस ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए कि वेजेस हैं तो मेरे को एक्सपेंसेस में डालना है लेकिन उसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या है दिस इज this will definitely happen only if you're very much clear about your concepts. तो उसके लिए आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की. डू नॉट क्रैम. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्रिएट न्यूमोनिक कोड्स. अगर हम थ्योरी की बात करें लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स इफ यू हैव सम सबहेड्स लिमिटेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स लाइक शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स स्टार्टिंग एक एक लेटर का न्यूमोनिक कोड बना लेंगे फटाफट से याद करेंगे कि ठीक है ऐसा ऐसा है लेकिन वो चीज बहुत शॉर्ट टर्म है. हो सकता है आपको वो उस टाइम पे ध्यान भी ना आए. तो प्लीज टेक ऑल दिस सीरियस. मैं आपको रिटन प्रैक्टिस का बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्रस्ट मी आई हैव सीन द डिफरेंस. I used to do written practice for my accountancy, economics, or my business studies.
whatsoever the subject may be. बाकी भी करती थी, but these three were very specific for me. For business studies we face a problem, यार इसकी written practice करें मतलब मैं पूरा chapter लिखने बैठूं. It is not possible for anyone. लेकिन whenever you are revising your business studies, what you need to do is keep your book with you. Just a minute. Let me explain everything without you focusing on the screen. आपको क्या करना है सबसे पहले, अपना कोई भी टॉपिक कर रहे हो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, बिकॉज दीज टू आर थियरी, एंड स्पेसिफिकली बिजनेस स्टडीज क्योंकि वो तो पूरा 100% थियरी है. सिर्फ एक 12th क्लास में आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, दैट्स ऑल. वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कि हमें वो सीधा आंसर लिखना है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि वी नीड टू मेंशन सबहेड्स. आपको पूछा गया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस और व्हाई डू वी नीड बिजनेस फाइनेंस. सीधा नंबर वन, लीड्स टू ग्रोथ. नंबर टू, रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, और कुछ भी ऐसा पॉइंट. आप जब आंसर दे रहे हो, आपको सबसे पहले सेंटेंस, अपना एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जरूर लिखना है. दैट, अच्छा एक चीज और, हमें ना ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन ने बोला हमें डिफाइन बिजनेस फाइनेंस, नहीं बोला तो हम सीधा एडवांटेजेस पे आते हैं, सीधा नीड्स पे आते हैं. डोंट डू दैट. मेक अ गुड हैबिट. whenever they are asking you कि why do we need business finance, try to explain business finance ना. कहीं पे भी आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वेदर इट्स लाइक किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर बिजनेस और योर टॉपिक, आप हमेशा बताते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और फिर आप डिटेल दोगे. सिमिलरली इन योर आंसर्स, जय गौरव, अभी आपने लास्ट कुछ एग्जाम्स अपने टेस्ट में देखा भी होगा. इट्स लाइक इफ आई हैव आस्क्ड यू कि टू राइट द लिमिटेशंस, तो आप डायरेक्टली लिमिटेशंस पे आए हो. 3 मार्क का क्वेश्चन है, छोटे छोटे से हाफ ऑफ सेंटेंसेस 3 लिखे एंड इट्स ओवर. बच्चों का एग्जाम नहीं होगा 11th 12th में. यू एक्चुअली नीड टू राइट अ वेरी गुड आंसर. तो इसके लिए अगर आपको समझ नहीं आता यार इसकी लेंथ कैसे बढ़ाऊं, तो अब आप सेंटेंसेस रिपीट भी नहीं कर सकते, एक ही बात को 3 बार भी नहीं लिख सकते. ऑलवेज डिफाइन दैट पर्टिकुलर टर्म related to which they have asked the question. और हर एक में भी जबरदस्ती नहीं करनी, बट इट्स लाइक दे हैव आस्क्ड यू फीचर्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स. तो आप क्या करो, आप सबसे पहले बताओ कि ओके, बिजनेस फाइनेंस, राइट द डेफिनेशन, एंड देन डू नॉट डायरेक्टली जंप टू 1 2 3. राइट, features of the business finance are written as follows or given as follows or following other features of business finance. ऐसा डेफिनेशन दीजिए प्लीज, and then write 1 2 3 4, and for which you also need to write your subheads. अब उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? Whenever you are discussing, whenever you are revising a chapter, don't just turn the pages of your book, don't just scroll it. कोई भी टॉपिक लो, let's say इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. तो ऐसा मत देखो कि ठीक है यार ये पॉइंट पॉइंट 3 4 पॉइंट्स पढ़े, समझ आ गया, एक्सप्लेनेशन ओ तो हम बहुत होशियार है उसमें करने में. एग्जाम में बेशक हम सेकंड सेंटेंस के बाद नहीं लिख पाते, लेकिन इट्स आर इंटरप्रिटेशन. हम जब भी अपने बुक से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सामने सॉल्यूशन है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा, लेकिन हमें याद नहीं आएगा. और सिर्फ आलमंड्स काम नहीं करने वाले आपके याददाश्त के लिए. यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस. जब आप अपने हाथ चलाएंगे ना, उसको साथ के साथ लिख कर देखेंगे, दैट विल बी मोर हेल्पफुल. रीड एडवांटेजेस के सब हेड, क्लोज योर बुक, हैव योर नोटबुक, ट्राई टू राइट दोस 4 पॉइंट्स, ओनली सब हेड्स. एक्सप्लेनेशन मत लिख कर देखो, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ो, उसमें से कुछ टेक्निकल टर्म्स को पिक करो. क्रिएट अ प्रॉपर नोटबुक और नोट्स, अपने शीट्स यूज करो या नोटबुक लगाओ. यू हैव रेड एडवांटेजेस, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि एग्जाम में तो सच में आपको प्रॉब्लम होने वाली है आपको, क्योंकि 1 मिनट बाद भी वो सब हेड्स एग्जैक्ट याद नहीं होंगे. तो प्लीज प्रैक्टिस योर सब हेड्स लाइक दैट. दूसरी बात, गर्ल्स की बड़ी अच्छी आदत होती है पेपर को थोड़ा प्रेजेंट वगैरह ये सब करने की, बॉयज थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, सीन इन जनरल. हो सकता है आप प्रेजेंटेशन में अच्छे हो, लेकिन डोंट टेक इट लाइक कि यार आपने कोई स्लिप बना के देनी है कि कुछ बस वैसे ही हमने डिस्कस करना था, हमने बस कर दिया, पेपर दे दिया. ट्राई टू प्रेजेंट इट परफेक्टली.
If we talk about any kind of important words, important sentences, you're highlighting your examples, आपके सबहेड्स अपने पेपर करने की इतनी अच्छी स्पीड बनाओ कि आपका पेपर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स पहले हो जाए, and then use that 10-15 minutes to make your presentation perfect. Have a pencil, just underline your subheads, underline the important terms. क्योंकि चेकर जब चेकिंग करने बैठता है ना, डोंट थिंक ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ ओनली, चेकर के दिमाग से सोचो। अगर उनको एक पेपर दिख रहा है कि यार ढूंढना पड़ रहा है कहाँ पे सब हेड है कहाँ पे हेडिंग है, एक बस ब्लू पेन सारे में दिख रहा है आपको, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। और दूसरा किसी ने प्रॉपरली प्रेजेंट किया हुआ, इंट्रोडक्टरी लाइन दिया, वहाँ पे हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अंडरलाइन कर दिया इंटरनल ट्रेड, ठीक है, रिटेल बिजनेस, वो अंडरलाइन कर दिया, मैं डिफाइन क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। After that, you have given some subheadings. You have also highlighted that. You have like marked those subheadings. एक टाइम के लिए टाइम कम भी होगा ना, तो हो सकता है चेकर आपको वो चीज़ देख के एनालाइज कर ले कि ठीक है यार, इफ दे हैव गिवन सम सब हेडिंग्स तो उनकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक होगी, दे कैन मार्क इट। या एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत कमी रही भी, देन ऑल्सो देर आर चांसेस दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। लेकिन सिर्फ वट्टा मारना है, इट्स लाइक कि ओके यू आर जस्ट थ्रोइंग योर आंसर, अपने आप समझ लो क्या है इसमें, क्या लिखा है, तो वही आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। Second point is, in your answer sheet you're writing answers not questions, ठीक है जय? It's No, not I did not question write. one, question two, question three, and I was like यार ये लिखा क्या हुआ है? फिर मुझे समझ आया जब दो तीन नीचे क्वेश्चन देखा, मैं इसमें सब क्वेश्चंस, जय यू आर प्रोवाइडिंग मी आंसर शीट नॉट क्वेश्चन पेपर, आई गेव यू क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो यू शुड राइट आंसर 1 2 3। और अब मुझे ये नहीं समझ आता कि वो 7 है या वो 9 है, तो भी हो सकता है कि कोई चेकर तो पेशेंट हो, ढूंढने की कोशिश करे या अंदाजे से लगा दे कि ठीक है यार ये 7 है, हम इसको चेक करते हैं। या इतने सारे टेस्ट चेक करके एक आदत हो जाती है कि ओके इस क्वेश्चन नंबर पे क्या क्वेश्चन है और आपका आंसर किससे रिलेटेड है। लेकिन इन केस आपका वो 9 का 7 उन्होंने पढ़ लिया और टीचर या जो चेकर है वो थोड़े से भी एग्रेशन में हुआ, यू आर गोना गेन 0 मार्क्स। तो प्लीज टेक दैट सीरियस कि आपका क्वेश्चन नंबर है नहीं है, वो आंसर नंबर है, और जो नंबर आप लिख रहे हो वो थोड़ा ठीक से लिख रहे हो, ठीक है। आपकी राइटिंग चाहे जैसी मर्जी हो, अभी हम मेडिकल में नहीं है, हम कॉमर्स में है, ओके। I have a good handwriting. नहीं वैसे बता रही हूँ, यू माइट बी हैविंग गुड हैंड राइटिंग, लेकिन वैसे बता रही हूँ, मेरे को शायद हैंड राइटिंग में गौरव की थोड़ी प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज मी। चलो jokes apart, we are commerce students, we need to write it very clearly। किसी केमिस्ट ने नहीं पढ़ना हमारा पेपर, टीचर्स ने पढ़ना है। हाँ जी। What difference does girls make from boys in presentation? I'll show you that on screen soon। Okay. अभी मेरे को पता नहीं if I have my 12th paper or not, लेकिन अभी before marriage I have kept them very safe। मैंने अपने 12th के लिटरली प्री बोर्ड्स टेस्ट पेपर ये सब बहुत संभाल के रखा हुआ था, बिकॉज दोज वर प्रेजेंटेड वेरी वेल। आप देखो, आई टोल्ड यू कि आपको वो इंट्रोडक्टरी लाइन सब एंड ऑल, नाउ कम टू द पॉइंट कि आपको लिखना कितना है। अब अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ा हुआ है, इट वुड बी वर्स्ट फॉर यू टू राइट 2-3 sentences अबाउट अ टॉपिक। Let's say if I talk about trade creditors, and this is nothing different but this is related to this, and बस खत्म, एक आधी बात और लिख दी, खत्म। ट्रेड क्रेडिटर्स पूछा है इन बुक, do you have half page for the same? What you have read from that? You are not allowed to give general answers, you need to write that very perfectly। और ध्यान रखना, even if they ask you to explain that, try to write your answers with bullets। कोई भी आंसर लिख रहे हो सीधा पैराग्राफ फॉर्म में अवॉइड करो उसको, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो। बिजनेस स्टडीज में स्पेसिफिकली ट्राई टू गिव पॉइंटर आंसर्स, ठीक है।
उन्होंने कहा एक्सप्लेन ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ओ सॉरी, हाँ, ट्रेड क्रेडिटर्स। नंबर वन, डिफाइन दैट। नंबर टू, गिव एग्जाम्पल। नंबर थ्री, गिव इट्स टू थ्री फीचर्स और वन और टू फीचर्स। तभी तो पता लगेगा ना whether you have written it perfectly or not। क्योंकि कुछ एक की तो होती है अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग, कुछ एक की होती है बहुत छोटी छोटी। और फिर गौरव जैसे क्या करते हैं, गौरव इट्स अ वट एवर वट एवर, यू हैव इतना इतना स्पेस इन ईच वर्ड जस्ट टू शो कि भाई मैंने पूरी लाइन यूज करी है। ऐसा मत करो, ठीक है गौरव? Okay, ma'am. Try to improve your content rather than increasing the size of the gap between two words। Now if we talk about, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले तो इसको क्या कैसे लिखना है। So I was talking about presentation. You asked me कि what is the difference in presentation for a girl or a boy generally. What happened is, अभी मेरे को बार बार वही चैप्टर याद आ रहा है बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन अ टेस्ट। लेकिन आपसे कुछ भी पूछा जाए, लेट्स से दे आस्क यू डिफाइन सप्लाई एंड factors of supply, determinants of supply, or they have directly asked you what are the different determinants of supply and their impact on supply, तो आप कभी भी भूल कर भी सप्लाई को एक्सप्लेन नहीं करोगे। Try to do that। Supply, you'll write like supply is the dash or color, and it might be possible a girl or a student with a good presentation skills will write supply, underline it, dot dots, explain it, and it's over। Number two, अब देखो फर्क होता है, आप एक सप्लाई को अंडरलाइन भी कर दो और फिर उसके नीचे से यहीं से लिखना शुरू करो, और एक आप ऐसा कर रहे हो, लीव द मार्जिन बिटवीन, मतलब जो सप्लाई के नीचे वाला वो छोड़ दो। नंबर टू, जो आपको मार्जिन दिया जाता है आपकी नोटबुक में, आंसर वन, आंसर टू, या यहाँ पर लिख रहे हो, और वैसे देखोगे ना, इट कैन बी आंसर वन और आप उसमें अपना आंसर लिखो, और जो ये 1 2 3 4 है, ये मेरे को ये नहीं समझ आया था, ये क्या था, ये 7 था 9 था, राइट इट प्रॉपरली। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं विच वी रियली अवॉइड, बट इसकी वजह से अगर चेकर को गुस्सा आया है, लिटरली इट कैन बी जीरो। तो इसके लिए मैं कैसे करती थी जय, टू अवॉइड ऑल सच सर्कमस्टांसेस कि मेरा आंसर क्लियर है कि नहीं, मैंने नेक्स्ट आंसर स्टार्ट कर दिया कि नहीं, तो इन सब कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, इफ दिस इज योर शीट, राइट आंसर वन, give your answer, leave some space, write answer 2, then give another answer। Don't use margin to write your answer 1, answer 2, answer 3। ठीक है? Is it clear? Yes, ma'am. Clear. Yes, Number ma'am. okay, look, और क्या गड़बड़ थी, सब हेड्स की। ऑलवेज रिमेंबर सब हेड्स वेयर एवर पॉसिबल। क्वेश्चन में नहीं भी दिए हुए कोशिश करो बना सकते हो तो, क्वेश्चन कह रही हूँ इन योर बुक, and specifically for difference questions, never attempt difference question without any basis। अगर उन्होंने कहा है differentiate between retail and wholesale trade, हम क्या करते हैं, ये अगर मन करा बना दिया, नहीं किया तो इट्स ओके, यहाँ पे लिख लिया ना रिटेल ट्रेड और होल ट्रेड। अब टीचर को इतना तो पता लग ही रहा है भाई, मैंने ऊपर हेडिंग डाली है, बट इफ यू आर गोना create this T along with this, it will be मतलब very useful for you to present your answer perfectly। और अब दो ना दो डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंस बोला उसका हेड बनाओ, गिव द डिफरेंस, अगेन हेड बनाओ, डिफरेंस। अब अगर हम डिफरेंस के अंदर के मटेरियल की बात करें, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस इन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, आप कुछ भी नहीं लिख सकते,
Try to write one sentence, but that sentence should be perfect to explain what you want to say. सिर्फ उसको explain नहीं करना ना, this is not risky, this is risky. खत्म बात. How is it risky? Try to write that. उन्होंने बोला differentiate between borrowed fund and honors fund on the basis of risk, on the basis of time period, time of issue. ठीक है, just don't write it this is risky, this is not risky. वो छोटे बच्चों का डिफरेंस होता था. This is risky as you have to return the payments, you have to make the repayments or payment of interest whether or not you are earning profits. However, for honors fund, this is less risky because you are not like obliged to pay the payments, pay the dividends or returns if you are not earning profit. तो अब आप खुद देखिए ना, एक आपने लिख दिया नॉट रिस्की रिस्की, और एक आपने थोड़ा सा ये लिखा, दैट इज रियली यूजफुल. बिजनेस स्टडीज का पेपर अटेम्प्ट करना एक खुद में क्वालिटी है, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा इफ इट इज डायरेक्ट, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट हाउ यू आर राइटिंग द आंसर दैट मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा मैटर करता है सच में. ठीक है, और अभी आप खुद देखना, यू हैव गिवन मी 2 टेस्ट्स. अभी जो थर्ड टेस्ट होगा आप खुद से ध्यान रखोगे, खुद को ऐसा लगेगा यार शाबाश, थोड़ा सा अब अच्छा सा इम्प्रूवमेंट किया है, यू हैव प्रेजेंटेड इट वेल, यू हैव एक्सप्लेन इट वेल. बट नाउ द पॉइंट कम्स फॉर टाइम मैनेजमेंट. या तो कई बच्चे पेपर अच्छा कर सकते हैं या टाइम पे कर सकते हैं. अब दोनों को मैनेज कैसे करोगे? अगेन योर रिटन प्रैक्टिस, योर टाइमर. टाइमर इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग जो हम कभी यूज ही नहीं करते. आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स टू हैव टाइमर विद देम, और इसका एक्सक्यूजेस मत लगाना मैं उस टाइम पे फोन बंद करके पढ़ता हूँ एंड ऑल दैट. ठीक है, टाइमर कैन बी ऑफ एनी टाइप. आप अपना क्लॉक भी साथ में रख सकते हो, टेबल क्लॉक रख सकते हो, बट टेक इट सीरियस specifically for your practical questions. When it comes to solving a full-fledged question of final accounts with adjustments at general practice, जब भी हम अपने घर पे practice कर रहे हैं और we are solving a question in our classroom, we basically take at least half an hour, even after our practice, if we are presenting that perfectly. जो अगर लगता है ना बिल्कुल आज अच्छे मन हम काम कर रहे हैं, विल बी प्रिपेयरिंग ऑल द अकाउंट्स प्रॉपरली, विल बी राइटिंग ऑल द हेडिंग्स एंड ऑल दैट. और अगर आप ढंग से कर रहे हो, यू आर गोना टेक 30+ मिनट्स, 30 to 40. और जब नए नए चैप्टर होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो यू आर जस्ट गेटिंग दिस मच टाइम. और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यू आर गेटिंग 15 मिनट्स फॉर दैट क्वेश्चन इफ दैट क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क. इसका लॉजिक बताऊंगी कि कैसे मैंने ये टाइम का बोला आपको. So for this, you actually need to polish your brain. You actually need to analyze the things, और सब जगह से ध्यान हटा के सिर्फ अपना क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो. And for that, I have given you some techniques in your class as well. If I talk about accountancy questions, specifically the final accounts with adjustments, या फिर हम बोले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो कि अब सिंपल कर दिया है, नेक्स्ट हाफ उसका कैंसिल कर दिया डिलीटेड पोर्शन में. तो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट या विदाउट एडजस्टमेंट भी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को सॉल्व करने में. बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं या फिर आंसर ठीक नहीं आता. आंसर ठीक लाना है तो कटिंग करते हैं. तो आई टोल्ड यू, नेवर गो फॉर प्रिपेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट. गो साइमल्टेनियसली. इसमें कैसे कर सकते हो आप? इफ ट्रायल बैलेंस इज गिवन, या फिर वो आपको डायरेक्टली वैसे बैलेंसेस दे देते हैं ना, आपको ये टेबल दिया उन्होंने, they have provided you balances, then they have given you some adjustments, profit and loss and balance sheet. पहले बात तो after your proper test, you're gonna prepare only one account for trading, for 2 gross or net, or they ask you for 3 profits gross, operating and net. आपको फॉर्मेट एक ही बनाना है.
Don't go for two formats. And then you're going to prepare your balance sheet. बहुत बच्चों की आदत होती है कभी डेट मेंशन नहीं करते, कभी हेडिंग नहीं लिखते। आगे टीचर को सोचते हैं यार एक्सपर्ट तो है ही, पता नहीं उनको खुद से कि कौन सी डेट है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट इट इज अ मैटर ऑफ योर प्रैक्टिस एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन। डोंट जस्ट टेक इट लाइक कि हमने अभी बैलेंस शीट बनानी है। If you are under a commerce stream, it might be possible that you are going to be a practicing accountant or chartered accountant or whatever stream you are going to have. So whenever you're gonna deal with your clients, you're gonna deal with the your authorities, जो भी आपके ऑफिस में सीनियर होंगे, या फिर अगर आप अपने एम्प्लॉयज से कुछ काम चाहते हैं, वर्क, क्या तब प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करेगी? सो इट इज जस्ट द वे अहेड in your life. So, how to attempt it? Let's say they have given you wages here and outstanding wages as adjustments. Okay. Provision here, there, and then again they have provided you bad debts in adjustment and new provision in adjustment. अब अगर आप क्वेश्चन and let's say they have provided you furniture, machinery, capital, interest earned, और भी बहुत हो सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी मिस्टेकन इन योर आंसर, क्योंकि आप क्वेश्चन में ये देखकर अपना फटाफट से ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। लेटर ऑन यू विल गेट टू नो अबाउट these adjustments which will give you zero, because ultimately you need to do cutting in your answers. Just to avoid it, always prepare trading profit and loss and balance sheet format simultaneously, उसको एक साथ prepare करके रखिए। Go ahead from adjustments, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया ये चीजें बार बार कि ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम योर एडजस्टमेंट, देन मूव अहेड, देन यूज दीज वैल्यूज ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? लेट्स से इफ यू आर मूविंग विद आउटस्टैंडिंग वेजेस, always remember कि all the adjustments are having at least 2 transfers in your books of accounts. So outstanding wages is my liability, I'll write here. Another adjustment is, I'll be showing it as a part of trading account. I'll be writing it 2 wages, whatever the amount is, plus outstanding wages, the amount from adjustment, make a total, and write that in the final column of amount. Do it like that. इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने पहले सिर्फ वेजेस लिख लिया और आपको बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस पता लगे, इट विल क्रिएट अ मेस इन योर सोल्यूशन। मोर ओवर कटिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो वो चीजों को अवॉइड करते हुए ये जब ट्रांसफर आप कर लोगे, पुट अ टिक ऑन दिस कि आप इसको दोबारा से एडजस्ट ना करें, या फिर जो यहाँ अमाउंट दी होगी पेंसिल से उसको कैंसिल कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्रोविजन वाला होता है ना, ये सबसे डेंजरस होता है क्योंकि कटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके लिए आई हैव जस्ट रिवाइज द टॉपिक विद यू, वो टेक्निक आप प्लीज़ फॉलो करना है इसमें, एंड यू आर गोइंग टू शो इट लाइक कि आप अगर यहाँ दिखा रहे हैं ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, तो बेड डेट्स प्लस फर्दर बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, टोटल करो यहाँ पर इसका, देन माइनस ओल्ड प्रोविजन। फिर साथ के साथ सोचो कि further bad debts and new provision needs to be adjusted in debtors. So show debtors here. Debtors minus further bad debts. Get the amount. Calculate provision for doubtful debts on the same. Get the amount. And then deduct provision for discount. And write the final amount in the amount column. Use this proper formatting. और ऐसा करने के बाद never forget to cancel these values from your trial balance या जो भी टेबल आपको दिया हुआ है. Also put a tick on these two कि I have done this. ऐसा करके जब आप सब ट्रांसफर कर लेंगे, then whatever the amounts are left out, like let's say capital, interest earned, अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आप फिर इसको ट्रांसफर कर सकते हो. And always remember, if item is given in the trial balance, you need to pass that only on one side. तो ये अगर आप इसी टेक्निक से अपने सब क्वेश्चन लोगे, वही आप एग्जाम में करोगे. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि
लेट इट बी। अभी ऐसा करते हैं, रफ कर रहा हूँ यार, मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, आई हैव लेस टाइम। I'll prepare, definitely prepare full format in your exam. तो अगर आप format बनाने जाएंगे, you are not gonna complete your exam. I can guarantee that. और करेंगे तो वो बहुत ही बुरे हाल होंगे. So you have to make yourself more expertise in your perfect presentation. Look, we're done with presentation. I've told you earlier as well, try to create margins. Or if you can't create a margin, just make a fold of your sheet and open it again. There'll be a crease so that you're gonna write in between. मतलब आप मार्जिन बहुत कॉर्नर तक आंसर नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अपना बीच में ही लिख रहे हैं उसको, ठीक है? ट्राई टू हैव मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स. अच्छा, नेक्स्ट कम्स टू बी सीक्वेंस. मेनी टाइम इट हैपेंस कि जो हमें 15 मिनट्स मिलते हैं वो हम अपना फटाफट से ढूंढने लगा देते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन सा हमें आता है, or we just start our exam with that. Or many a times students do a very silly mistake. It's like question number 1, question number 5, question number 10, question number 2. आप चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोचिए ना, अगर हमें बार बार ऐसे क्वेश्चन आंसर ढूंढने पड़ेंगे, और देन वी आल्सो हैव टू मेक मार्किंग ऑफ द सेम और टोटल करके करना है, तो कितना इरिटेटिंग होगा. एंड दैट आल्सो शोज कि यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम. आप बहुत ज़्यादा चूज कर करके क्वेश्चंस कर रहे हैं कि यार कौन सा आता है कौन सा नहीं आता. डोंट डू दैट. For accountancy, I always suggest students, it's your wish, it's your own practice or your opinion, but I always suggest to start the questions from the end. From the end, it's like do 5 marker, 6 marker, 8 marker question at first, और उसके बाद आप छोटे क्वेश्चंस कीजिए. यूज योर 15 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व योर जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 1 marker और 2 marker. आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स ओके कि आप आपके लिए वो पेपर फ्रेश नहीं होगा, बट आई पर्सनली प्रेफर कि यूटिलाइज दैट 15 मिनट, क्योंकि हमारी राइटिंग स्पीड बहुत कम हो जाती है एग्जाम में. और अगर हम चाहें भी तो बहुत ज़्यादा लिखना है, तो यूज दैट 15 मिनट्स, हैव अ पेंसिल, ट्राई टू सॉल्व द इनिशियल क्वेश्चंस, then start solving your exam paper from the like last one, or start solving from first. So at least you'll be able to arrange your answers within those 15 minutes. That will really help you. उसकी वजह से क्या होगा, 15 मिनट्स आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको थोड़ा टाइम दे सकते हो. तो प्लीज मेंटेन योर सीक्वेंस. आप या तो एंड से स्टार्ट करिए या तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, एंड इन बिटवीन इफ यू फील लाइक यू कैन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज 1 or 2 question, you can just go, leave some space, it can be extra, but don't leave lesser space. Extra छोड़ेंगे तो it's okay ना, you can just leave it, write the answer and leave the space. Okay, there is no restriction on your sheet usage, so just utilize the sheets properly, present it perfectly. Next one, length of the answer. I've already told you कि it's not your junior class. You need to write the proficient answer with good explanation, heads, subheads, everything perfectly. Introduction दीजिए, and if it is like 5 marker theory question, try to write its conclusion, even if they have not asked you. Let's say I've asked you कि features or advantages, anything related to any particular topic. Write introductory line, give 5 points. Acha, be very careful. If you are giving introduction and conclusion, that doesn't mean that you can reduce the number of main points. You can't. If that's 5 marks, they expect 4 to 5 from you. If in book you only have 4 points, write those 4 points. Half of mark will be for headings, subheadings, and rest for explanation. Points come because you are writing a good conclusion and ending. So length should be good enough. For practicals, you don't have any problem for length, because ultimately what the answer is, it is, you're going to solve that. Next one is language to be used. Language यहाँ पे doesn't mean Hindi English. Language here means your technical jargon, your technical terms. Don't write very general answers. अगर हम रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड की बात करें, अगर हम सप्लाई की बात करें, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें, टाइप्स ऑफ मार्केट, एंड इन अकाउंटेंसी वी आल्सो हैव
provision and reserve. Don't write general answers. Try to use jargons. And for that again you need written practice. या फिर आप जब कभी अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं या गोइंग थ्रू दैट, try to make a keynote or try to have a highlighter या फिर अपना जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके टॉप पे आप वो वर्ड्स लिखते जाइए. यूज योर पेन पेंसिल वट एवर यू लाइक. और let's say this is your page. Write key terms here ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब वो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो आपका स्पेशल ध्यान जाए वहां पर कि ओके यार आई हैव लर्न दीज फ्यू वर्ड्स. You can create your notes too. Time management. Generally, we get 3 hours and 15 minutes for a particular exam. अभी आजकल जो टाइम है वो टाइम और मार्क्स कम हो गए हैं, बट in and all, it's like you are having 80 marks exam and you're having 3 hours. 3 hours means 3 into 60. ओके, तो आपको जो टाइम मिल रहा है ना, कैलकुलेट दैट इन मिनट्स. अगर आप अपने मार्क्स से डिवाइड करेंगे ऑन एन एवरेज यू हैव 2.5 मिनट्स फॉर ईच मार्क. मतलब अगर आप एक नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं यू जस्ट हैव 2.5 मिनट्स टू एनालाइज इट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट द आंसर. जस्ट 2.5 मिनट्स. सो इफ यू आर एबल टू मैनेज दैट तो आपका पेपर जरूर पूरा होगा. For that, I always suggest use that 15 minutes to stop question marker अभी आने वाले हैं. Solve those questions. Right? Hmm? Okay. You have 2 hours exam for 40. Huh. 2 hours. That means you are having 120 minutes, and you have 40 marks. Directly, it's 3 minutes per mark. So let's say if you are having 2 mark question, you have 6 minutes. If you are having 3 questions, you have 9 minutes maximum. If it is practical, theory doesn't matter. आपको इतने में पूरा करना पड़ेगा. And if it is of 5 mark, hardest thing, 15 minutes. I just told you earlier. Okay, within 15 minutes, you just have to create your trading profit and loss balance sheet with adjustments. Within 15 minutes, you have to analyze the whole thing of bills of exchange, and you need to rectify all the entry. Oh, sorry, pass the entries in the books of both the parties. तो ये चीज़ों को करने के लिए you actually need time management. So whenever you are practicing, try to do it like कि जो मेरा 1 or 2 mark question है ना मैं उसको फटाफट करूँ. Why to take 6 minutes for 2 mark question? Just try to do that within 2-3 minutes. Let's say if you're taking 4 minutes for this, if you're getting 5 questions, तो अभी आपने 2 into 5 आपने यहाँ से 10 minutes सेव करे हैं. और ये इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन, इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ वैसे ही कर रहे हैं. इट इज़ रियली यूजफुल फॉर योर एग्जाम. तो ये जो 10 मिनट है ना, अगर आपने यहाँ से बचाया होगा, यू कैन यूज दैट विद द 5 marker क्वेश्चन, और यू कैन यूज दैट 10 minutes एट द एंड फॉर योर परफेक्ट प्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से ही डिफरेंस आता है जो 89-90 वाले स्टूडेंट्स होते हैं और जो 95+ वाले स्टूडेंट्स होते हैं. इज दैट क्लियर? हाँ जी. I'm audible? Yes, teacher. Okay. Shah and Gaurav, is that clear? Yes, ma'am. Where's Jay? Has he मतलब joined with you only? What, ma'am? जय कहाँ पर है? Ma'am, उसमें मैं इंटरनेट ये वो आ रहे हैं मैम सर्च करके. इकट्ठे बैठ जाओ, इकट्ठे क्लास ले लो. चलो फाइन. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. ट्राई टू डू दैट, अदरवाइज इट वुड बी एट द एंड यू आर गोइंग टू से कि मुझे पेपर आता था मैं पूरा नहीं कर पाया, या फिर लेंदी पेपर दिया गया था. एक ये बहुत जनरल टर्म है जो हम स्कूल पे या फिर बोर्ड पे ये चीज़ को डिनोट कर देते हैं कि यार आई हैव नॉट कंप्लीट माई एग्जाम बिकॉज लेंदी पेपर था. वो लेंदी करते हैं इंटेंशनली, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड लॉट, that is no more lengthy. You can write the answers perfectly even before time. Next point is subheadings. Whenever you have any theory question, don't forget to write your subheadings. Don't leak over sentences. Subhead लिखो.
उस चीज़ को एक्सप्लेन करो, और वो मैंने आपको बताया हाउ टू राइट इट. इफ यू आर राइटिंग अ सब हेड, डोंट राइट इन दिस एरिया, ट्राई टू अवॉइड इट, राइट ओनली आफ्टर दैट. कंप्यूटर में जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वी टेक केयर ऑफ दोज मार्जिन एंड ऑल दैट ना, ये वही चीज़ है. Explain here. Write your second subhead here. Explain here. ऐसा करना है. Presentation बदल. Conclusions. Whenever you have 5, 6 mark questions, 4 mark questions, try to conclude it properly. Even if you have given sufficient enough points. I told you कि आप अगर conclusion और introductory line दे रहे हैं, don't miss the points. And even if I am taking your test now, take that time in consideration. I always write on the group ki how much time is given to you for this particular a test. So let's say if it is 40 minutes and I have allowed you 60 minutes just to scan it and share it to me. Don't just go ahead कि मेरे को 20 minutes extra मिले हैं ना, तो मैं उसको लिखता हूँ ना 36 minutes. Don't do that. 60 minutes दिए हैं आपको scan करके भेजने के, तो खुद से खुद को गलत यूज करो. मुझे शायद नहीं पता लगेगा, बट वो आपको एग्जाम में वही चीज प्रॉब्लम करेगी. Always take it like if it is 25 marks, तो आप इसको मैक्सिमम कोशिश करो 60 मिनट्स में करने की. ठीक है. डायग्राम्स. अभी डायग्राम्स में लगेगा यार वो क्वेश्चन में पूछते तो है नहीं, अब हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं हमें डायग्राम बनाना पड़े, ना ही हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, बट डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट. डायग्राम्स नॉट ओनली दोज कार्टून्स एंड ऑल, बट डायग्राम्स मतलब लेट्स से अभी हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, ये वो, और उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस. सो यू जस्ट हैव टू राइट इट लाइक आपने अपना प्रॉपर 5 मार्कर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. एट द एंड राइट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ट्रेड, create these points and just write the subheadings. हो गया डायग्राम. ये अपना मेन आंसर करने के बाद आप छोटा सा ये कर सकते हो. दिस वुड बी समथिंग एडिशनल. And in business studies, I used to literally prepare some cartoons. Like if they ask you centralized system, decentralization, and all that. So this is top management. Under this we have middle management. तो हम यहाँ पर मैं ऐसा cartoons बनाती थी. So as to explain the whole topic in short. So this is middle management. And at last again we have person working under these. So that will be lower management. So this is just an example. आपका जो भी topic होगा, whenever you are reading a topic, whenever you are revising it, try to analyze it. कि इसको मैं अगर मेरे पास इसका question आता है तो how would I write the answer perfectly? Okay, Joshua and Shah, are these all clear to you? Yes, teacher. Is there any specific point you feel like is a problem facing your exam? Time management. So because you feel like your test is lengthy, right? For that, Shah, I've told you कि please try to have timers. और you have a wall clock यार, वहाँ पर देख कर लिखो ना कि ठीक है, it's like 3 p.m. I have to finish this question. हाँ. नहीं, don't overthink when you're studying. It's okay, but it's like अगर आप ऐसा सोच के चले जाएंगे, you'll be unable to practice. और एग्जाम में So सोचने बैठ गए overthinking, अच्छा. overthinking is normal during exam, and on top of that, some teachers keep on staring at us. That time we'll feel more nervous. Oh, that is too bad. हाँ हाँ, that actually create problems. But ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करो. I hope you have got to know how to attempt exam, whether it's practical or theory. Even if you have more doubts, you can write that in the comment box. We'll be back soon with more videos. Thank you and all the best for your exams.